We'll begin with Qirat in just a few minutes. So kindly take your seats. Ladies and gentlemen, once again, a very warm welcome to all of you. I would like to say a special welcome to our chief guest, retired Brigadier Haris Nawaz Sahab, the Home Minister of Sindh. A very warm welcome to you and to all our guests who've arrived on time. It's nice to see you all here. A very warm welcome to our chairman, the CEO, to our celebrity guests who are present in the front row. Ladies and gentlemen, kindly take your seats for the program is about to begin. आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम चेस वैल्यू के इस तवील सफ़र के बारे में जानेंगे। 2009 से लेकर 2023 तक आज हम 8वीं कराची ब्रांच की लॉन्चिंग भी सेलिब्रेट करेंगे। ये ब्रांच कल खुलेगी। You're very fortunate to be here today. And also the state-of-the-art office, which is the pride of Chase Value. We'll discuss all of that and more. We also have some light-hearted entertainment segments. So look forward to all of that. Kindly take your seats, ladies and gentlemen. We're about to begin. We will begin tonight's program as per our Islamic tradition with Qirat and Naat, which will be followed by the national anthem of Pakistan. सहाफ़ी हज़रात से भी दरख्वास्त है अपने कैमरास पोजीशन कर लें और बैठ जाइए. We are about to begin.
Assalamu alaikum. How are you? For all those joining us just now, ladies and gentlemen, a very warm welcome. Our program is ready to begin. हम शुरुआत करेंगे as per our Islamic tradition with Qirat followed by Naat. And for this I would like to welcome on stage Qari Asad Ayyub. Qari Asad Ayyub, please make your way to the stage. There you are. Seen your face on television for many years. And हम program की शुरुआत करने लगे. सहाफ़ी हज़रात से एक बार फिर दरख्वास्त है कि वो settle हो जाएं और फ्रंट रो को बराए मेहरबानी खाली रखें. Kindly take your seats, ladies and gentlemen. We're waiting to begin. तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि वो अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं. हमारा प्रोग्राम अब शुरू होने लगा है. खासकर मैं कहूँगा फ्रंट रो को जरा खाली रखिए. Perhaps our ushers can make sure that everyone is settled in their seats. Thank you very much. Service staff. We are about to begin. Ladies and gentlemen, please welcome Qari Asad Ayyub on stage for Qirat and Naat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरी तमाम ख़वातीन हज़रात से दरख्वास्त है, तिलावत कलाम पाक से बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है, तो आप लोग अदब के साथ थोड़ी देर अपनी ज़ाती गुफ्तगू को तर्क करें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में शामिल हो जाएं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील. अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्हम्दुलिल्लाहि मुल्शिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी वो मुहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसुजा सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम अर्ज की जिब्रील ने शाहे रसूले मोहतरम आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम न कोई आप जैसा था न कोई आप सा होगा कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली दुरूदुल पर सलामुल पर यही कहना खुदा का है खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है वही सरदार आलम है वही गमखार उम्मत है वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा वासे अल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। थैंक यू जज़ाकल्लाह। Thank you very much, Qari Sahab. You have a sonorous voice. And now, ladies and gentlemen, as per our Pakistani tradition, let's all rise for the national anthem of Pakistan. Shah
Ladies and gentlemen, indeed no tradition does our country more honor than its overwhelming hospitality. And tonight, we are the recipients of the warm, courteous, and generous hospitality of Farooq Ghaffar Sahab. Thank you for having us, sir. A very warm welcome to all the guests. I would like to thank a number of people for being here tonight. Mansoor Wahid Sahab from GFS Builders, a very warm welcome to you. Zafar Abbas Sahab of the JDC, Aapki Khidmaat se kaun waqif nahi hai. Shahid Javed Sahab of the Park Malaysia Forum, thank you very much for being here. Hassan Sardar Sahab, SSP Korangi, thank you for being with us tonight. Majid Aziz Sahab of the KCCI, President, a very warm welcome to you. And also to Zubair Chaya Sahab, a very warm welcome from the Korangi Association. It's nice to have you here with us. And tonight, ladies and gentlemen, we're celebrating not just the opening of the 8th store of Chase Value, we're talking about the journey of a very intelligent brand. Why intelligent, you may wonder? Intelligent because it's a brand that completely cut out the middleman from affairs and bringing all the benefits to the consumers. This is a wonderful thing that we've seen over the years. This journey began in 2009 and it's come a long, long way with the shifting of head offices, with the opening up of new branches, with new territories and new regions being explored. Bahawalpur, Multan, Faisalabad, Islamabad, new markets. And, they're very proud owners of Pakistan's largest fashion retail store. They also have a wonderful online presence. So it's really a very, very complete brand. 8,000 products being sold under 200 different categories. Everything but your grocery can be done here at Chase Value. And they have created wonderful value over the years. देखिए हम कुछ ब्रांड से तो वाकिफ हैं जो ऑन एवरेज हमें क्या मिलता है महंगा ब्रांड अच्छी क्वालिटी सस्ता ब्रांड लो क्वालिटी and every now and then we also find brands which are expensive but do not offer good quality. But every once in a while along comes a brand which offers you excellent quality at very low prices. And that's what we're talking about here. There are no sales at Chase Value simply because the sale is always on. It's a sale throughout the year. And that's a wonderful thing. There's so much to celebrate. This entire journey, I could talk to you about it because in the course of doing this program, I came to know about the entire history of the brand. But I think we'll hear it from the very people who made that history. And one such individual is the CEO of the company. Ladies and gentlemen, please welcome Umar Farooq. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, स्पेशली ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का जिन्होंने अपने कीमती वक्त से सब ने टाइम निकाला और आज इस खुशी का हिस्सा बने हमारे साथ। आज हम यहाँ इस बिल्डिंग और इस स्टोर के इफ्तिताह के लिए जमा हुए हैं और ये जो बिल्डिंग है इसको इन्विजन मैंने 2017 में किया था in line with our vision statement of being the most preferred but yet affordable fashion and lifestyle brand. हमने इसी कंस्ट्रक्शन 2021 में स्टार्ट की थी और 2022 के अक्टूबर में हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। आज से 75 दिन पहले हमने नीचे जो आज आपने स्टोर देखा है उस पे काम शुरू किया था एंड आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू द होल टीम हु मेड दिस हैपन। 75 दिन में ये दुकान बनाना आसान काम नहीं था, तो हैट्स ऑफ टू देम एंड अ क्लैप फॉर देम। चेज ब्रांड का सफ़र जो है मेरी पैदाइश से भी 1 महीना पहले शुरू हुआ था 1984 में, जब मेरे वालिद साहब और इनके भाइयों ने मिलके एक छोटा सा स्टोर शुरू किया था और अल्लाह ने इनको बहुत कामयाबी दी और उसके बाद कुछ डाउनफॉल भी आया, जिसके बाद 2004 में मेरे वालिद साहब ने अलग हो गए उस बिज़नेस से और फिर 2009 में मैंने और इन्होंने मिल के खालिद बिन वलीद रोड पे एक बहुत हम्बल स्टार्ट लिया। एक हमारी 5,500 स्क्वायर फीट की दुकान थी जिसमें ऊपर ही वेयर हाउस और ऑफिस होता था और जब हमने शुरू किया तो बहुत स्केप्टिसिज्म था कि कैसे ये इस इलाके में दुकान चलेगी, कैसे ये एक बंदा पूरा इतनी सारी परचेजिंग और इतनी मैनेजमेंट देखेगा।
लेकिन अल्लाह का साथ था। अल्लाह ने ना सिर्फ उस ब्रांच को बड़ा करवाया बल्कि उसके बाद हमें 7 मजीद दुकानें खोलने का मौका दिया। हम पहले दिन से ही एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को समझते हैं। हमने 2013 में ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया था, जब दराज भी पाकिस्तान नहीं आया था, हमारे बाद 2013 में ही आया था। इसके बाद हमें एक बड़ा ब्रेक जो मिला वो 2015 में मिला, जब हमने अपनी हेड ऑफिस खालिद बिन वलीद रोड की दुकान से निकाल के एक इंडिपेंडेंट लोकेशन में शिफ्ट की। उससे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि हमें लोगों ने देखना शुरू किया एज प्रोफेशनल कंपनी। उससे पहले रिटेल को कोई एक इंडस्ट्री नहीं देखता था। लोग रिटेल को समझते थे कि दुकानदारी है, तो हमें अच्छा टैलेंट बड़ी मुश्किल से मिलता था। लेकिन ये एक स्टेप था जिसके बाद अच्छा टैलेंट भी हमारे पास आना शुरू हुआ। लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि 20% ऑफ जीडीपी जो पाकिस्तान का है वो रिटेल सेक्टर है, which translates into 20,000 billion rupees। अगर हमने फिर जो बीज बोया था 2015 में, उसका हमने फल रिप किया 2020 में, जब हमने अपना नेशनल एक्सपेंशन शुरू किया। 2020 में हम पहली अपनी दुकान कराची के बाहर खोली जो इस्लामाबाद में थी। उसके बाद 2021 में जो हमारा ब्रांड था चेज वैल्यू सेंटर, उसको हमने रीब्रांड करके चेज वैल्यू किया। और फिर 2021 में ही हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट स्टोर फैशन लाइफस्टाइल की खोली फैसलाबाद में, जो कि इज़ ओवर 54,000 स्क्वायर फीट। और ये जो हमारा सफ़र है ये चलता रहेगा। आज 2023 में हम यहाँ खड़े हैं, हर साल एक नया मार्का रकम कर रहे हैं, और आप सब की दुआओं में इंशाल्लाह इसी तरह ये कामयाबी का सफ़र जारी और सारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। Nice to hear from you, Umar Farooq. I would also like to present a warm welcome to our celebrity friends here, ladies and gentlemen. We've got the wonderful actor Ehsan Khan here tonight. We've also got another wonderful actor, Junaid Khan. We've got Mr. Faizan here. How do you do? Zoya Nasir, Komal Mir, a very warm welcome. Good of you to be here with us tonight. And as I said, ladies and gentlemen, it's a tale of innovation. It's also a family saga. And now we've got one of the lighter heart segments of the show. And what can I say about the people who are about to come on stage? You know, I'm reminded of the words of the famous Renaissance poet Battista Alberti. Back in the 1400s, he wrote about the dignity of man. And those words were very fresh at that time. Today they die on our lips. But he said, back in the 1400s, about human beings, to you is given a body more graceful than other animals. To you the power of apt and various movements. To you most sharp and delicate senses. To you wit, reason, and the ability to create humor. Please give a warm welcome to Akbar Chaudhry and Ali Gulpir. Akbar comes on stage first, then Ali, along with Osama. So give them a warm welcome, please. Let's have another round of applause. Oh. There he is. Hello. Hello. थोड़ी और Hello. Assalamu alaikum ji. क्या हाल है सबके? Can you guys hear me? Everybody good? One guy. Thank you for being excited. कैसे हैं सब? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए. Congratulations to the family and to everybody who's responsible for this. फैजान भाई बहुत महंगी बातें करके गए हैं. सुनते हुए खर्चा हो रहा था मेरा. कोशिश करूंगा कि थोड़ा सस्ते में आप लोग को निपटा दें. मुझे अंदाजा है कॉमेडी देखने का अभी आप में से किसी को इंटरेस्ट नहीं है. खाने की जो खुशबुएं आ रही हैं वो आपके अंदर कुछ फीलिंग्स पैदा कर रही हैं कि ये क्यों खड़े हैं हमारे और खाने के बीच में. तो जल्दी से आपको 15 से 20 मिनट में हम फारिग कर देंगे. पूरी वैल्यू देंगे जो कि एक मोटो है यहाँ का. तो ठीक है, रेडी हैं आप लोग?
कुछ शोर मचाएं यार, ऐसे नहीं होगा ये सन्नाटे में। अच्छा अब ज्यादा शोर मचा दिया, थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। चलें जी, जबरदस्त। अच्छा वंस अगेन चेस वैल्यू एंड ये मैंने थोड़ा आज समझा है इस फैमिली के बारे में, एंड आई फील लाइक कि बहुत सारी जो हमारी लोकल यू नो लेजेंड्स होते हैं उनमें एक ये है कि 3 भाई थे, ये एक चलता है कॉमन थीम। आप लोग को शायद कुछ लोग को अंदाजा हो, बंबई चालिया मार्केट में शार्ट चल रही है नहीं है, या तो शार्ट चल रही है, ओरिजिनल मिल नहीं रही। मैंने केबिन वाले से पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, केबिन वाले ने पहले इसका मतलब है कि जरूरी बात है, ठीक है। उसने समझा मुझे इस काबिल कि मैं अपना जो एसेट है वो डिस्पोज करूं और फिर इससे बात करूं। खैर ही टेल्स मी 3 भाई थे, नुमान को मार दिया। तो ये 3 भाई वाला जो सिलसिला है चलता है, लेकिन यहाँ के जो 3 भाई हैं इन्होंने बड़ा अच्छा कर लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वन अगेन, एंड आई थिंक ये बड़ा एक नंबर जगह है, बहुत एक नंबर माहौल है, खर्चा किया गया इस पे। तो इस सब के लिए प्लीज एक दफा लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अच्छा नाम में भी मुझे थोड़ा एक है कि चेस नाम क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि इट्स नॉट लाइक द टिपिकल नेम यू थिंक अबाउट, राइट, कि कोई पाकिस्तानी ब्रांड का जैसे इम्तियाज आप सोचते हैं, लेकिन चेस का क्या मतलब, पीछे लग जाओ। एक हमारी जो पाकिस्तानी लीचड़पन है उसको लेके हम चल रहे हैं कि भाई पीछे लग जाओ। अब किसके पीछे लग जाओ, लेडीज के पीछे लग जाओ, लेकिन फिर समझ आए कि वैल्यू के पीछे लग जाओ, तो ये भी एक अच्छा है। और आप लोग सब लगे वैल्यू के पीछे, वैल्यू मिलेगी आपको, चेस वैल्यू पे ये सब चलेगा। और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। फिल बदी कॉमेडी करते हैं हम, ठीक है। व्हाट दैट मीन्स इज कि इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये सब अभी तैयार होगा फ्रेश खाने की तरह, लेकिन इसमें आपका ताउन रिक्वायर्ड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुन बैठे में एक जनाजे वाला माहौल चल रहा है, ये नहीं हो सकता। आपने थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करना है, आप में से कुछ लोग को स्टेज पे भी आना होगा। तो ये होगा, स्क्रिप्ट नहीं है, इम्प्रोवाइज्ड है, ऑडियंस की एनर्जी से ये शो चलेगा। तो ये सब इसकी डिटेल है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर आई डू दैट अपने मैं फेलो परफॉर्मर्स को बुलाना चाहता हूं। आप लोग की भरपूर तालियों में अली गुल पीर, Thank you. and joining us Syed Osama Sami. Thank you so much. And with that we will play our first game. इसके लिए भाई हमें 2 और माइक चाहिए होंगे, प्लीज 2 और माइक दे दें। 2 ऑडियंस से वॉलंटियर्स रिक्वायर्ड है। कौन आना चाहेगा, जल्दी से आ जाएं, लंबी नहीं करेंगे हम। फैजान आपका थोड़ा सा दिल चाह रहा है, माफी मांगी है फैजान ने। यहां से कोई शपाटर लड़के भेजे यार, कुरंगी के जो कचरा लौंडा जो है वो चाहिए। आ जाए, जल्दी से आ जाए, टाइम बहुत कम है, भेज दें। ये है, ये बिल्कुल भेज दें, ये मैं आइडेंटिफाई कर लिया भाई को। आ जाए, इनके लिए तालियां। और एक भाई, एक कोई इस साइड से आ जाए। यहाँ तो अच्छा, यहाँ तो ज्यादा ओल्डर क्राउड है। आपका नाम यार भेज दें, जल्दी भेज दें, जो भी है। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। वहां पे नहीं कुछ मिल रहा, वहां आधे क्राउड की एक टांग कवर में है। आ जाए, आ जाए, आ जाए, अरे आ जाओ भाई। अली सर आपको थोड़ा जाके, हाँ ये भाई को ले आए। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, चलें। बिस्मिल्लाह करें। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। भाई को माइक दीजिएगा। क्या सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। और सर आपका नाम? हमजा भाई। अब्दुल अजीज, हमजा भाई, आप उनकी उस राइट साइड पे आ जाएं, और आप हमजा अली गुल की राइट साइड। मैं आपको ये माइक दे दूंगा अगर आपका नहीं चला। इस गेम में होगा क्या कि ना, एक सीन होगा जो ऑडियंस की थोड़ी सजेशन से हम लेंगे, लेकिन जो सीन के दौरान ये लोग जो जुमले इस्तेमाल करेंगे ना, वो मुकम्मल जुमले नहीं होंगे, उनको आपने मुकम्मल करना होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने दोपहर में वो खाया। हाँ, खाना खाया। बहुत अच्छा। थोड़ा इमेजिनेशन भी यूज करना चाहें, क्रिएटिव होना चाहें, वो भी कर सकते हैं। कुछ भी, इसमें कोई गलत जवाब नहीं है, ठीक है। एक दफा हमजा आप भी एग्जाम्पल हो जाए।
ये कमरा बहुत अच्छा है। अच्छा है। ठीक है, आप एम्प्लॉई हैं चेज वैल्यू के? हाँ, आपको तो जाहिर है बोलना था ये। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ी सजेशन चाहिए ऑडियंस से। अली गुल पीर जो हैं वो एक छोटे से बच्चे हैं, वो शॉपिंग करने आए हैं उसामा अपनी अम्मा के साथ चेज वैल्यू पे। ठीक है, ये थोड़ा बताएं कि जो अली गुल जो छोटे बच्चे हैं वो किस टाइप के बच्चे हैं? बच्चे किसी ने नहीं देखे आज तक, सब शरारती बच्चे हैं। और कुछ क्या? यहाँ एक क्राउड यहाँ पे मजे का है। चुलबुले बच्चे हैं, चुलबुले, भोले, फंटर बच्चे हैं, ये अच्छा लगा। फंटर बच्चे हैं। और जो उसामा इनकी अम्मा है वो किस टाइप की अम्मा है? कोई स्ट्रिक्ट अम्मा है, कोई रिलैक्स अम्मा है, किस टाइप की अम्मा है? बोला खापड़ अम्मा है। हापड़, कोई डिस्क्राइब कर दे खापड़, जिसको ना बताओ। फंटर बच्चा, हापड़ अम्मा। हाँ ठीक है, फंटर बच्चा, खापड़ अम्मा चेस वैल्यू में शॉपिंग करने आए, विंटर की, सर्दियों के कपड़े लेने आए। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को? एंड सीन। चुन्नू बेटा, अप्पा, अच्छा सॉरी अम्मा, असल में आप दोनों एक दिन दिखते हैं ना। देखो मैरिज देखो आज हम तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे सर्दी के ना, क्योंकि जब भी सर्दी होती है तुम्हें बहुत सर्दी लगती है और तुम वो बोलते हो वो कंबल। हाँ, तो हम तुम्हें आज जो है ना एक बहुत मोटी सी जैकेट दिलाएंगे, बिल्कुल कंबल जैसी। ठीक है, मुझे कंबल जैकेट चाहिए, मुझे अपनी नई चड्डी चाहिए, मुझे नई शूज चाहिए और मुझे चाहिए क्रॉकरी, क्योंकि छोटी वाली जो थोड़ी रुक के आए, क्रॉकरी। क्रॉकरी? हाँ, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा अम्मा, मजा नहीं आ रहा आपके खाने में। अरे ऐसी क्या बात है, तुम्हें हाँ, पता है मसाले हल्के चलने। अच्छा हाँ। मैं दिल्ली वाली हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे खाने का कितना शौक है। जब मैंने पहली बार खाना बनाया था तो मेरी उम्र थी 10 साल। 10 साल। हाँ। मिर्ची से भी छोटी थी मैं खुद। चाइल्ड लेबर। जी हाँ, तो तुम कैसे कह सकते हो एक खापड़ अम्मा को ये? अम्मा पैलेट चेंज हो गया है, अब है ना, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे चाहिए पिज्जा, मुझे चाहिए स्नैक्स। बोला तो तुमसे जा रहा नहीं है, और स्नैक्स खाएगा तू एक झापड़। स्नैक्स नहीं, स्नैक्स। अच्छा स्नैक्स। चलो हम मैं तुम्हें सब दिला दूंगी। हाँ। पहले जो है ना हम ये स्टोर में घुस गए, ठीक तो है। ये वाले जो ना इतना नहीं घुस जाए कि अब्बा, आप। अब्बा ये मेरे मुझे मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये क्या कर रही है बच्चा? ये किसी और का है। अच्छा सॉरी सॉरी छोड़ दो आओ इधर आओ। ये जैकेट ट्राई करो, शाबाश। ये जूते कितने अच्छे हैं अम्मा। अरे वो अंकल कोई और है। अम्मा ये चाहिए। अरे वो अंकल को छोड़ दो, वो नहीं, वो ऐसे करते हैं। थैंक यू थैंक यू अब्दुल अजीज, थैंक यू हमजा। एक दफा इन लोग के लिए तालियां प्लीज। थैंक यू सो मच। चलें जी, अगला गेम जो हम खेलेंगे इसका नाम गेम का है हुज लाइन। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला है। अच्छा ठीक है, इसमें होगा ये कि अली गुल और उसामा जो है अगेन इसी टाइप का एक और सीन करेंगे, लेकिन अगेन उनके जो जुमले हैं ना वो मुकम्मल नहीं है। जुमले जो हैं वो मुकम्मल करेंगे इन 6 पर्चियों से, जो कि हमने पहले शो के ऑडियंस से 6 पर्चियां लिखवाई। इन लोग को कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 आप रख लें और 3 उसामा आप रख लें। सीन की जो सजेशन चाहिए, इधर ही आऊंगा मैं, शबाटर लौंडे यहीं मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कोई ऐसा रिश्ता जो कि दो कोई बिछड़े हुए लोग बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, ऐसा क्या कोई रिश्ता हो सकता है? दोस्त, ठीक है। और कोई बिछड़े हुए, कोई अब्दुल अजीज साहब? मियां बीवी बिछड़े हुए। आशिक, ठीक है। दुश्मन, कर्जदार, ये अच्छा है। कर्जदार मिल रहे हैं, बिछड़े हुए कर्जदार। ठीक है, तो आप में से किसी ने कर्ज दिया है और किसी ने कर्ज लिया है, तो ये सीन जब स्टार्ट होगा इसमें अली गुल और उसामा उन बच्चियों को इस्तेमाल करेंगे। और कोई एक लोकेशन बताएं, ये लोग कहां पे मौजूद हैं? हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ठीक है जी, कर्जदार हॉस्पिटल में मौजूद हैं। एंड सीन। ये खांसी मुझे, ओए हाँ याद आ गया। अरे तुम गफूर? हाँ, मेरी यहाँ पे जॉब है, रिसेप्शनिस्ट। अच्छा हाँ। कैसे हो तुम? अच्छा ही था कि नहीं दिखे थे इतने दिन से। मैं ठीक हूँ, पर मुझे याद है जब तुमने मुझसे पैसे लिए थे, तुमने मुझे बोला तो था नहीं टेस्ट हॉस्पिटल में बहुत महंगे हैं, जफर भाई ने सस्ते किए हुए टेस्ट।
तो मुझे जाना है वहां पे। अरे वो स्कैम था, मुझे थोड़ी पता था कि असली में वो नहीं है। नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझसे पैसे लिए थे, तुमने मुझे कहा था, मुझे आंखों में देख के तुमने बोला था कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी बेटी की शादी है। नहीं, मेरे ले जहेज जाओ। का मसला था, मेरा अपना। अच्छा हाँ, इसीलिए। ओके। लेकिन देखो, मैं तुम्हें लूटना थोड़ी चाह रहा था। फिर? मैं तो तुमसे जो उधार लिया है वो मैं वापस कर दूंगा। अच्छा। मैं तुम्हें पता है कितने अरसे से जॉब कर रहा हूँ। हाँ। एक बहुत बड़ी जगह जॉब कर रहा हूँ। वो बॉस जो है ना मेरे, हाँ। वो रोज आके वो मुझे एक बात कहते हैं। क्या और वो मुझे बोलते हैं आते ही कि डॉक्टर ने लिखा था दवाई की जगह उसका नाम, और साथ ये भी लिखा था सुबह दोपहर और शाम। बहुत बड़ी लंबी लाइन दे दी डॉक्टर ने। डॉक्टर रोमांटिक आदमी है। हाँ। इसीलिए मैं उसके लिए अस्पताल में दवाई लेने आ गया हूँ। अच्छा है अच्छा ना? छोड़ो, उधार होता जाएगा, अब तुम्हें हाँ। दवाई दे दूं मैं। दवाई ठीक दे है? दो, बॉस भी परेशान है। अच्छा। और फिर देखो मैं तुम्हारा भी निपटा दूंगा तुम मामला। फिक्र नहीं करो, सही, सब इलाज मैं कर सही, लूंगा। सही। आजकल हालात टाइट है, इसलिए हमने क्लिनिक के बाहर बोर्ड में लिख दिया है, सबके लिए लिख दिया है कि ना जनानी हो ना परेशानी हो। ठीक है, तो सिर्फ बैचलर लोगों के लिए हॉस्पिटल है। चलो, शुक्र। अगर आप लेडीज के साथ हो यू कैन कम इन। नहीं, मैं तो आपको पता है अकेला ही आया। शादी में लोग स्ट्रेस होके आ जाते सही है, हैं। सही है। ठीक तो यार वो अब जब तुम दवाई दे ही रहे हो और उधार की तो बात हो रही नहीं है ना? तो तुम मुझे थोड़ा सा हाथ टाइट चल रहा है ना? हाँ, और दे दूं? हाँ यार। तुम्हें शर्म नहीं आती यार? नहीं ना यार, मैं तुम्हें प्रॉमिस, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं सिर्फ एक मैसेज का वेट कर रहा हूँ। ये जैसे ही वो हमने IMF को भी बोला था वापस कर लेंगे, नहीं होता भाई, वापस नहीं आते। ये पाकिस्तानी है यार, ये आदमी पाकिस्तानी है। मगर जैसे ही मुझे मैसेज आ जाएगा ना वो जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। क्या मैसेज? वो मैसेज आ ही गया। देखो वो मैसेज क्या आया है। मैसेज आया है कि हर सेल से बेहतर है होलसेल प्राइसेस। ओह वाह, तो तुम शॉपिंग के लिए इसलिए पैसे चाहिए तुम्हें? जी। ताकि तुम शॉपिंग करो। चलो ठीक है, तो मैं तुम चाहता हूँ कि तुम अच्छी डील मिले, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे मेरी अम्मी हमेशा कहती थी, मेरी आंखों में देख के बोलती थी, बेटा एक चीज याद रखो कि जब भी तुम्हारे पास कोई बंदा है पैसे लेने, तो तुम उनको देख के बोलना स्टाइल आपके जमाने का और रेट आपके अब्बा जी के जमाने का। ओके सीन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक दफा जोर से तालियां उसामा और अली गुल के लिए। और इसके साथ हम चलेंगे अपनी आखिरी गेम की तरफ। आखिरी गेम की तरफ। मजा आया आप लोग को अभी तक? दो लड़कों को तो आया यहाँ पे मजा, बाकी आप वहां पे कर लीजिएगा। खैर, एक और हमें ऑडियंस वॉलंटियर चाहिए, उसके बाद हम वी विल बी आउट ऑफ हेयर। तो एक और बंदा हमें स्टेज पे प्लीज ज्वाइन कर ले। बहुत मजे का गेम है, जल्दी से भेजें, टाइम बहुत कम है। आ जाएं, जो भी है जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। अलीगुल उनको खींच के लाएं आप। और भाई एक कुर्सी लगा दीजिए यहाँ पे। वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक दफा भाई के लिए तालियां प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वहाब भाई, प्लीज हैव अ सीट। वहाब भाई, इस गेम में क्या होगा कि आप जो है ना, किसी कोई टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, उसके एक एक्सपर्ट हैं, ठीक है? इशू ये है कि आप इंग्लिश या उर्दू या किसी भी नॉन लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप इशारों या आवाजों के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? जिब्रिश जिसे कहते हैं, इस तरह करके, ठीक है? उसामा जो है वो इस शो के होस्ट हैं। वो आपसे कुछ सवाल करेंगे जो कि अलीगुल, जो कि आपकी जबान बोलते हैं, वो आपके लिए ट्रांसलेट करेंगे। आप उनको जवाब देंगे इस तरह कर करके, और वो फिर हमें बताएंगे कि आपने बोला क्या, ठीक है जी? तो वहाब के जो कारकुन हैं वो बताएं। वहाब किसी एक फील्ड है जिसमें एक्सपर्ट है, लेकिन अजीब सी फील्ड है, कुछ जैसे नाखूनों की फील्ड है, कुछ अजीब सा मसला है। नाक के बाल के एक्सपर्ट हैं, क्या है? लेट आने के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आप जात पे ना जाए, पर्सनल है। आप कुछ और अजीब सा आइटम बताएं। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट भाई मेंटल हेल्थ इश्यूज पे हैं। कुछ और कुछ एक इस तरह का मसला है यार, मतलब देर से उठते हैं, काले बालों के एक्सपर्ट हैं, 70 के छोटे बिच्छू के एक्सपर्ट हैं, ऐसी कोई बात। चबाते बहुत हैं, ठीक है वहाब, आप चबाते बहुत हैं।
वहाब भाई आप चबाने के एक्सपर्ट हैं, ठीक है जी। एंड सीन। वेलकम टू आवर लेट नाइट शो नाजरीन, और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास एक्सपर्ट जो कि हमारी जबान में बात नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे साथ उनके एक ट्रांसलेटर आए हैं। तो ये हम बताते चलें कि ये जो एक्सपर्ट हैं ये चबाने पे हैं, तो चबाने से अब आप जैसा भी समझें, यहाँ तो समझ चुके हैं लोग। हम पूछेंगे आपसे, डायरेक्ट जाएंगे बात पे कि ये जो एक चबाने का सिलसिला है, ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे आपने ये इंस्पिरेशन ढूंढी? तो अगर आप ये कह रहे, मैं जब छोटा था ना तो डब रोटी चबाता था। अच्छा अच्छा, तो अब बड़ा हो गया हूं, सबका दिमाग चबाता हूं। सही 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 सही, जबरदस्त। तो हमने सुना है कि अमूमन ऐसे काम के लिए जब आप किसी को चबा रहे हो तो दांतों की तो जरूरत होती है, लेकिन उसके अलावा एक चीज और की बहुत जरूरत पड़ती है, और वो चीज आप हम पूछना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज है वो? वो कह रहे मैं मसाज, कह रहे मैं मसाज अच्छा कर लेता हूँ, तो मैं आपको चबाऊंगा, टेंशन आप स्ट्रेस होंगे, फिर मैं आपको रिलैक्स भी कर लूंगा। क्या बात है, कंप्लीट एक्सपीरियंस। कंप्लीट, ये नहीं कि आपको चबा के टेंशन देके चले गए, ऐसे कोई एक्सपर्ट पूरा रिलैक्स करके फिर तसल्ली से। क्या बात है, थोड़ा सा करके दिखा सकते हो? हाँ, रिलैक्स, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, तो आखिरी सवाल हम आपसे एक करना चाहेंगे। बिल्कुल। आप ये बड़े अरसे से ये काम करते आ रहे हैं, आप नहीं, लेकिन हम ये कभी बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, कभी आपने किसी को चबा लिया हो और उन्हें मजा नहीं आया, तो कोई ऐसी अगर आप स्टोरी शेयर करना चाहें। फैमिली शो। थैंक यू आप, थैंक यू वाब, एंड थैंक यू गाइस सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अली गोलपीर एंड सैयद उसामा शमी, एंड आई वाज योर होस्ट अकबर चौधरी। थैंक यू ऑल सो मच, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। So, how was that? Quite a wonderful performance, no? They had me at Kachra Londa, I swear. That was the highlight for me. I loved it. And now, ladies and gentlemen, the first light-hearted segment has come to an end. We also have a second one, but I will not tell you who that is just yet. Let's talk about the brand a little bit because, you know, the brand story is something that we're here to celebrate tonight. ये ब्रांड शुरू हुआ 2009 से, हालांकि मुझे ये भी इत्तला मिली है कि कहानी 1984 में शुरू हो गई थी, बट 2009 से लेकर 2023 तक का सफर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है. एंड इट्स बीन अ स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस, इट्स बीन अ फैमिली सागा, इट्स बीन अ स्टोरी ऑफ इंडस्ट्री. एंड रियली अब मैं आपको क्या लिस्ट में, मेरे पास सारी चीजें स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं कि रीब्रांडिंग कब हुई, 2011 में, स्टोर खुला 2009 में, उसके बाद पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आए, फिर तीसरे फ्लोर पे आए, हेड ऑफिस 4th फ्लोर पे चला गया, फिर हेड ऑफिस शिफ्ट हो गया. बट ये सारी स्टेजेस अगर मैं इस तरह से बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा. लेट्स हियर अबाउट देम फ्रॉम द मैन हु स्टार्टेड दिस जर्नी all those years ago. Please give a warm welcome to the chairman, Mr. Farooq Ghaffar. आदाब, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. With warm welcome to our chief guest, Brigadier Harris. I am very much indebted to him that he has taken out a lot of time for this event, and I hope he is enjoying the event. इनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और इनके लिए वार्म वेलकम और तालियां. मुझे तकरीबन गारमेंट की फील्ड में 40 साल हो गए. मैं पहले गारमेंट बनाता था, बच्चों की स्पेशलाइज्ड गारमेंट. हम उस ज़माने में बच्चों के जो इन्फेंट्स वेयर होते थे उसके नकल करते थे, मदर केयर की, और ये बेचते थे. लोग दुकानदार जो है ना, हमारा ब्रांड बेचता था
हांगकांग का इम्पोर्टेड बोल के डबल प्राइस पे, हमने सोचा हम अपनी दुकान क्यों ना कर ले। तो खैर ये सफ़र चालू हुआ, बहुत लंबा सफ़र हुआ, हमने लोग बहुत कुछ सीखा, कस्टमर के बारे में भी, मैनेजमेंट के बारे में भी, प्रोडक्ट के बारे में भी। ये बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। अल्लाह ने कामयाबी दी, हर तरफ अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़े रखा। जब फंसे अल्लाह से मांगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आया। तो अब हम चेज़ वैल्यू में हमने सोचा कि हम एक प्रोफेशनल तरीके से इसको एक्सपेंड करें। तो हमने एक ब्रांड रखा, एक हेड ऑफिस बनाया, फिर वो छोटा पड़ा, फिर अल्टीमेटली वी फाइनली यहाँ आ गए हम इस ऑफिस में। और बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे उमर फारूक ने इसको तैयार करवाया, बहुत अच्छा ऑफिस बनाया, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस बनाया, सारी टेक्नोलॉजी दुनिया भर से देख के ना सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, सेलिंग के लिए भी, डिस्प्ले के लिए भी, और आगे भी बहुत कुछ सफ़र हो रहा है। तो इंशाल्लाह आगे आप चेज़ वैल्यू सेंटर में बहुत कुछ नई चीज़ें देखोगे, ऐसी भी चीज़ें देखोगे जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई होगी, और ऐसी भी चीज़ें देखोगे जो दुनिया में भी नहीं हुई होगी। इंशाल्लाह ये हम करके दिखाएंगे। ये सब कुछ करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो हमने सोचा कि हमें आगे जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिसर्च करना है और लोगों को सर्विस देनी है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है, तो व्हाई नॉट टू हैव आवर ओन बिग हेड ऑफिस with which can cater multiple stores and multiple brands. हमने इसके लिए एक अपना खुद इन हाउस ब्रांड भी डेवलप किया है, जो कि बहुत ही हाई फैशन ब्रांड होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होगा, हाई क्वालिटी होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी, ये आम मिडिल मैन के रीच में इसके प्राइसेस होंगे, क्वालिटी इंटरनेशनल होगी हर, क्योंकि हमने एक एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है अपने पास। तो हमें पता है कि बारीकी क्या है इस बिज़नेस की, हमें मैनेजमेंट का भी पता है, हमें कस्टमर का भी पता है। हमने दुनिया में ट्रैवल करके देखा कि और लोग क्या कर रहे हैं। एक अच्छा माइलस्टोन ये है हमारा कि चेज़ वैल्यू में कभी हमने सेल नहीं लगाई। क्या वजह? सारी दुनिया सेल लगाती है, लेकिन हमने दाम ही अच्छे रखे। और सेल जो है ना, ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। इवन वेस्ट में अब सेल का लोगो है ना, फेल होने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता फेल। हमने एक ज़माने में जब पुराना चेज़ वैल्यू से पहले हमने बहुत सेलें लगा के देख लिया था कि हमने कहा ये अब फेल हो गया। तो हमने जो है ना प्राइसेस पे तवज्जो दी कि प्राइस रीजनेबल होने चाहिए। तो हमने प्राइस को टारगेट बनाया, कॉस्ट कटिंग की, सारे मिडल एलिमिनेट किए और अच्छे प्राइस पे अपना छोटा सा मार्जिन रख के लोगों को दिया। माशाल्लाह बहुत चला। और इंशाल्लाह हमारा नया ब्रांड एक है इमिनेंट, नया ब्रांड, इसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। हमारी स्टोर में तो अवेलेबल है, हम इसको अलग से एक इसकी चेन बनाएंगे। और ये एक हाई फैशन स्टोर ब्रांड होगा जो कैटर करेगा मिडिल और अपर मिडिल लोगों को, और जो बहुत फैशन कॉन्शियस है उनके लिए ये आइडियल ब्रांड होगा। और इंशाल्लाह आप हमारी दुकान में देखेंगे इसकी इमिनेंट के नाम की काफ़ी चीज़ें हैं, परफ्यूमरी भी है, कॉस्मेटिक भी है और गारमेंट्स भी है, बच्चों का गारमेंट है। इट इज़ अ कंप्लीट brand right from the newborn babies to the adult, people like me as well can use those brand. तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें देखेंगे, आप देख के इसको शॉपिंग कीजिएगा, आपका फीडबैक दीजिएगा, हमें कोई एनकरेजमेंट दीजिएगा। हम इसमें बहुत डिटेल में वर्किंग कर रहे हैं। जो इसकी खराबियाँ या जो कंप्लेंट्स आ रही है उसको हम ठीक कर रहे हैं लॉन्चिंग से पहले। इंशाल्लाह वी विल बी लॉन्चिंग इट एंड वी होप एवरीबडी विल कोऑपरेट विद अस।
इंशाअल्लाह अब हमारा टाइम मेरे ख्याल से खाने का हो रहा है, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा कि सर इसको मैं वेलकम करूँगा। अब हमारे चीफ गेस्ट को वेलकम करूँगा कि वो आके कुछ दो बातें बोले। पहले इसका ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस असद साहब आगे आ जाए प्लीज़, दो बातें बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़ारूक साहब को जो चेयरमैन हैं और उमर फ़ारूक प्लस यंग स्टार्स सिटिंग ओवर हियर along with of course all distinguished guests, Assalamu alaikum. It's really a pleasure for me and it was a surprise to me the way things have brought up here. I never thought it will so amazingly good store, and that too in this area, particularly this site area, I would say Korangi area, where the peoples from low society, particularly lower middle class or lower class people are living here, and it's a big opportunity. I was always feel very difficult time people to go from here, go to the Clifton, go to the Defence, or to the different areas where they can't travel and waste a lot of time on the transport expenditures. So I think it is a place where they can come with their families, they can sit here, and they can enjoy the facility. And I hope it's ultimately going to have a food court also here. But let me tell you, as the Home Minister, it's my responsibility, and I'm always very concerned about it, for the best business-friendly environments. And I'm very happy under these prevailing environment, we see law and order is not good. The store has come up, and this speaks, then business activity is already going over there, and that's the best part of it. Second, याद रखें कि हमने कराची में मेरी पूरी कोशिश है, हमारी ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर के भी ऑर्डर्स हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है. इसको कराची को हमने क्राइम फ्री सिटी बनाना है. This is my desire and we are going our best. And for that you can see my SSP sitting here, Hassan Niazi. He's a very professional officer and I'm sure he's going to look after you all the time as far as security matters are there. इसके बाद यहाँ पर बच्चों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ड्रग्स स्टार्ट हो गई हैं. इसके लिए I'm very always concerned कि ये स्कूल कॉलेजेस में, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में आइस है, फिर उसके बाद डिफरेंट ये अपने गुटका है, ये वैसे ओवरऑल चल रहा है, इसके साथ फिर कोई या अदर हैश स्टार्ट हो गई है. तो वी आर वेरी पर्टिकुलर, वी आर टेकन लॉट ऑफ प्यूनिटिव मेजर्स. We have sealed the border of Baluchistan and Sindh. Then we have raided all the factories. I think all factories where these things have been prepared, they have been sealed. And that is what is the achievement of our, I think, our this police force and of course my department. Along with this, इस वक्त second देखें, इस वक्त कराची से all business activity generate होती है. So we have to be very careful. This is what when और मैं जहाँ भी जाता हूँ business community के पास, they invite me, and my focus is always to provide secure, best conducive environments for business development. क्योंकि देखिए, it's a war of economy. Wherever you see, remember Pakistan is an Islamic country. Pakistan is a nuclear country. Then we have a very good strategic location. We have a very strong fighting army. The only thing we lack is our economic problems. And CPEC, we were told we all know how important it is. And for that, if we have a CPEC, we have economic prosperity, then we can dictate our terms to the world, and we do all intercede in our national interest. So that is what we want to assure it. मुझे बहुत खुशी है और मैंने देखते हुए there's a big crowd here, and I'm sure it's going to be a good thing. मेरी हर वक्त की दुआएं यही हैं कि चेज वैल्यू के लिए हर मौके पर बहुत अच्छी तरक्की हो. जिस तरीके से ये आम लोगों के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, this is worth mentioning. And I'm sure it is going to give a very good business. You should all come here, feel space, and we are there to provide security. So there is no problem. Come over, we'll provide all security, inshallah. Again, मैं सबके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, फारूक साहब का, उमर फारूक का, whole team का, and best of luck. Thank you very much. Gentlemen, may I please request you to stay with me on stage a moment. We have a token of our appreciation to be presented to the chief guest. Farooq Ghaffar Sahab, along with our chief guest, ladies and gentlemen, retired Brigadier Haris Nawaz, can we please have you up on stage? I would also like to request Mansoor Wahid Sahab of GFS Builders to join us on stage for the presentation of this token. Mr. Zafar Abbas from JDC, आपकी खिदमात से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं. Please join us on stage.
And I would also like to request SSP Korangi Hassan Sardar Sahab to join us on stage for this memento. And this is being presented to our chief guest, ladies and gentlemen. Feroz Shah Sahab, can we please have you up on stage as well? Advisor to the Prime Minister on Investment. A very warm welcome to you from the Board of Investment. And now we shall present a token of our appreciation to the chief guest, retired Brigadier Haris Nawaz. That's a bag of goodies as well. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for joining us, sir. It's wonderful to hear from you and to hear about the safe environment that is being provided for commercial activity to happen. और ख़वातीन और हज़रात, हमने आपसे जिक्र किया कि ये सफ़र 2009 में शुरू हुआ, बड़े स्टेजेस से गुजरा और अब 8वां स्टोर कराची में खुल चुका है. You also saw the state-of-the-art office, but I'm sure not most of you got the chance to see the office. And we have put together a short film that sums up this journey, and we'd like you to see it. Kindly take your seats, ladies and gentlemen. Here's a film about this wonderful journey that goes on from 2009 to 2023. Lo and behold. हमारी ग्रोथ की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है. दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी एंड द जर्नी कंटिन्यूज. Hello, yes. What a wonderful journey, ladies and gentlemen, summed up in a small video. And really, having spent a couple of days in the preparation for tonight's program, I got to understand what they mean with their emphasis on their core values, which are integrity, ownership, discipline, excellence, care,
and value, most importantly. And now, ladies and gentlemen, I'd like to welcome Zafar Abbas Sahab of the JDC up on stage for a second to say a few words on the occasion. Let's give a warm welcome. He's done a lot for this city. बहुत शुक्रिया। बस मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। कराची में हबीब बैंक प्लाजा बनता है 28 मंजिला, और चाइना के इंजीनियर्स कराची आते हैं 70s 80s में और आई चुंदरीगढ़ रोड पे स्टे करते हैं कई दिन तक और देखते हैं उस 28 मंजिला बिल्डिंग को और बोलते हैं ये पाकिस्तान ने, कराची ने क्या बनाया है, और देखते रहते हैं उसको। फिर वहां से वक्त आते हैं, उनके इंजीनियर्स आते हैं, पूरी दुनिया की टीमें आती हैं, अरब कंट्रीज से आते हैं इस कराची की एक बिल्डिंग को देखने। उसके बाद वो वक्त आया, कराची का नाम पड़ गया रोशनियों का शहर। फिर एक वक्त आया जब कराची का नाम पड़ गया कचरों का शहर। हमारे पास ना मैदान है, ना पार्क है, ना गलियां हैं, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, कुछ नहीं है। सब कुछ एक मंसूबे के तहत बर्बाद कर दिया गया। लेकिन आज जब मैंने गोदाम चौरंगी क्रॉस की और आधा 1 किलोमीटर तय करने के बाद मुझे रोशनियां नजर आई, यकीन नहीं आ रहा था मैं इस वक्त कोरंगी में घूम रहा हूं। और कोरंगी में शान चौरंगी पे पहुंचने के बाद इस बिल्डिंग को देखकर मैं गफार साहब को सबसे पहले ये मुबारकबाद दूंगा। मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या है। आपने कोरंगी को एक मोती, एक हीरा दिया है, वो चौरंगी अब देखने का दिल चाह रहा है। कोरंगी के लोग यहाँ आएंगे, आपको दुआएं देंगे। आपने उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, कोरंगी लांडी जितने बर्रे आजम होते हैं भाई, इतना बड़ा इलाका है। ये तो हमारे साथ एक जुल्म है कि इस शहर की 6 करोड़ की आबादी को कभी 1.5 करोड़ कर दिया जाता है, कभी 2.5 करोड़ कर दिया जाता है, कभी 3 करोड़ कर दिया जाता है, कभी 3.5 करोड़ कर दिया जाता है। और हकीकत यह है कि इस शहर की आबादी 5 से 6 करोड़ की आबादी है, जिसमें कोरंगी लांडी एक बहुत बड़ी जगह है। इतने बड़े मुल्क होते हैं दुनिया में भाई, और उसमें एक पहला सेंटर इस तरह का बना के आपने इस शहर को रोशन करने में, कोरंगी को रोशन करने में एक अहम किरदार अदा किया। मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। And now I would like to welcome Mansoor Sahab from GFS Builders. Please give him a warm welcome. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये चीज़ वैल्यू का ये जो आउटलेट इस कोरंगी के इलाके में इसकी ओपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और ये एक कोरंगी के जो रिहायशी हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये आउटलेट एक नेमत होगा इंशाअल्लाह ताला। और जो चेज़ वैल्यू का जो एक मौक़िफ़ है और जो स्लोगन है उसको मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ, और वो स्लोगन है होल सेल प्राइसेस रोज़ाना। तो ये होल सेल प्राइसेस ये सिर्फ मार्केटिंग की हद तक नहीं है, हमने इसको ऑब्जर्व किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हकीकत है। और मैं हमारे फारूक अंकल को, उमर को, तमाम चेज़ वैल्यू फैमिली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनके जो और आउटलेट्स हैं उसी तर्ज पर ये आउटलेट भी इंतहाई कामयाब हो। थैंक यू ऑल अगेन। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. It was nice to hear from you. And now, ladies and gentlemen, there's a good reason why I didn't welcome one of our celebrity friends sitting in the front row. There's a good reason why I didn't welcome his name. I didn't say his name earlier on, because he's one of our performers tonight. He's a fine, fine comedian, makes us laugh on television every day. Please give him a warm welcome, Shafat. And this is our final entertainment segment tonight. How are you doing? Take it over. Thank you, Mr. Fazan. Okay. लाओ मैं माइक लेके आओ, मुझे हैंड माइक चाहिए होगा। चलता है? गुड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये एक पेट एक्सरसाइज होती है कि हम आते हैं, स्टेज पे आते हैं, फिर हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप लोग जवाब नहीं देते, फिर हम दोबारा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली हमारा तरला होता है कि भाई खुदा के वास्ते वालेकुम सलाम कहते, तो हम एक दफा दोबारा तरला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये बात सर, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। बड़ी हैरत की बात है सर, वैसे आज आपको यहाँ पे देख के और मैं यहाँ स्टेज पे, आज हम ना मैं टीवी पे हूँ ना आप कैमरे के उस तरफ हैं,
और ना आज यहां पे हम सियासत की कोई बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ये फोर्टे नहीं है। मैं बात करता हूं सियासत की, और मैं जहां भी जाता हूं मेरा ह्यूमर ही यही है, बिकॉज मुझे लगता है पाकिस्तान में सियासत से बड़ी कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे पास है ही नहीं कोई और बात करने के लिए। हमारी मैयतों में, शादियों में, खतनों पे, चेलम पे, मजालिस में, मिलादों में एक ही बात है, क्या चल रहा है। अच्छा, दो टाइप के लोग हैं, एक है पुल से उस तरफ वाले, और ये पुल, मैं ये वाले पुल की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेडियम पुल की बात कर रहा हूं। स्टेडियम पुल से उस तरफ जाओ, किसी जगह पे बैठो, यार सुना भाई वापस आ रहे हैं। बड़े वाले ब्रिज की तरफ आ जाओ, इस तरफ, और इस तरफ से आगे यहां नजदीक में जो एक और इलाका है जहां पे पॉश लोग रहते होते हैं, वहां पे जाओ, कहते हैं यार मुझे बताओ इनकिलाब आ रहा है या अभी तक फंसा हुआ है। मैं दोनों में नहीं हूं, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। खैर ख़वातीन हज़रात, आज मैं यहां पे थोड़ी सी कुछ और बात भी कर लेता हूं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, बड़ा क्लोज दोस्त है, वो मुझे अक्सर रझाता है, मुझे बुलाता है कि भाई आए मेरे पास, आए मुझसे कभी बात करें, और मेरी नहीं बनती, मेरे और उसके एक नजरियाती इख्तलाफ है, और वो नजरियाती इख्तलाफ बहुत बुनियादी नोयत का है कि वो ये कि उसको शिकार का शौक है। मुझे कहता है भाई आओ शिकार पे चलें। एक दिन पहले मैं उसको टालता रहा, एक दिन उसने मुझे बुलाया, भाईजान आ जाओ शिकार पे चलना है। मैंने कहा किसका? बोला रशिया से मुर्गाबियां आई हुई हैं। मैंने कहा तूने बताया ही नहीं। कहता नहीं भाई हर साल आती हैं। मैंने कहा देख, पहली बात तो ये कि मैं ऐसी महफिलों में जाता नहीं हूं, दूसरी बात ये रशियन के औकात नहीं है, तीसरी बात यह कि हम उसे मुर्गाबी नहीं कह सकते। बोला नहीं भाई असली वाली की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मैं कौन सी थाईलैंड वाली की बात कर रहा हूं। हेलो आर यू रशियन? या आम रशियन, सादिका। ऐसा थोड़ी है। उसने कहा नहीं भाई तू जिनका सोच रहा है वो उड़ाने वाली है, मैं उड़ने वालियों की बात कर रहा हूं। खैर मैं उसके साथ गया एक दिन, मैंने उसे कहा देख यार मैं कोई फायरिंग वायरिंग में तेरे साथ नहीं हूं, क्योंकि ये मुर्गाबी है, हमारा बेजुबान परिंदा है, बेचारा इतनी दूर से चल के आता है, इसके और हमारे जज्बात एहसासात एक जैसे। बोला नहीं यार वो बतख, हम इंसान, हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा मैं साबित कर देता हूं। कहता करो। मैंने कहा देखो ये यहां पे क्यों आती है। कहता है इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। मैंने कहा वो तो हमारा भी चल रहा है। कहते नहीं इनका अक्टूबर से मार्च तक होता है। मैंने कहा अक्टूबर से मार्च तक कराची में हर वीकेंड पे 8-8 शादियां होती हैं, फर्नीचर मार्केट में गद्दे खत्म हो गए। बोला नहीं, इनके ना पार्टनर ढूंढने के लिए खासतौर पे फीमेल के लिए बड़ी लड़ाइयां होती हैं। मैंने कहा हम कौन सा टीसीएस में मंगाते हैं, हमारे भी तो बड़ी लड़ाइयां होती हैं। बोला नहीं इनका जो है ना वो सिस्टम कुछ हो रहा है, इनका शिकार होता है। मैंने कहा वो तो हमारे वालों को भी होता है। बोला कैसे? मैंने कहा बड़ी आसान सी बात है। मैंने कहा इनका शिकार कैसे होता है तू समझा। कहता है देख एक झाड़ी होती है, झाड़ी के पीछे छुपते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई अकेली सी मुर्गाबी हो, उसके बाद जेब में से एक पीपड़ी निकालते हैं। पीपड़ी समझते हो? उसमें से बत्तख की आवाज आती है, और बत्तख भी ऐसी वैसी नहीं, बत्तख वो जो कि बुला रही हो करके एक सीटी बजती है। वो सीटी बजती है, मुर्गाबी को लगता है बुला रही है, मुर्गाबी उड़ती है, इधर पीछे से हम फायर करते हैं, धड़ल, मुर्गाबी नीचे, कुत्ता जाता है उठा के लेके आ जाता है। ऐसा हमारे यहां कहां होता है? मैंने कहा होता है। बोला कैसे? मैंने कहा हमारे यहां शादियों में आंटियां घूम रही होती हैं खुलेआम, जहां कोई नाजुक नफीस सुती सावित्री बच्ची दिखती है उसके पास जाके बोलती है बेटा कितने बहन भाई हो तुम लोग, अम्मी कहां बैठी हैं तुम्हारी, वो देख रही हो वो पतला सा स्किन टाइट पजामा पहन के, वो कमजोर लागर सा बच्चा, वो जो हेयर जेल की दलदल से बाल बनवा के आया, वो मेरा बच्चा है। बच्ची समझती है बत्तख बुला रही है, बच्ची निकली, वही घर पे आ गया पैगाम। अगर उस वक्त बच्ची ये कह दे कि आंटी ऐसा जानवर अगर मार्केट में हो ना उसको ग्राहक से छुपाते हैं, आप खुलेआम कॉन्फिडेंस से दिखा रही हैं, तो बच जाए। खैर
ये हमारा एक सिस्टम है, चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने हमारे मुल्क में, आपको पता है, ऐसी जब भी गैदरिंग्स होती है उन गैदरिंग्स में पॉलिटिक्स जरूर डिस्कस होती है। और पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ, मैं तरतीब से चलता हूं, अक्रॉस द बोर्ड चलूंगा, इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा डिस्कस होते हैं पीटीआई वाले। एनी चेयर्स फॉर पीटीआई वालाज हियर? तालियां बजाओ। वेट साहब बहुत बैठे हुए हैं यहां पे। अच्छा, इनका एक सीन है पीटीआई वालाज का। पीटीआई वाले जो हैं, इन्होंने खान साहब के कई रूप देखे हैं। एक खान साहब का फिलंथ्रोपिक रूप है, उसको हम सब कायल हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बनाया, अस्पताल बनाया। एक उनका रूप है जिसमें उन्होंने कप्तानी की, कप्तान के हम सब फैन हैं, उन्होंने कप्तानी की, वर्ल्ड कप जिताया। वो बाद में गले पड़ गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक उनका तीसरा रूप है, और वो तीसरा रूप है उनका जिसके बारे में बड़ा बोस्ट करते हैं, और वो है कि उनके बड़े सारे मुआशके रहे हैं और वो बड़े खुले डुले से आदमी है। तो हर बंदे को लगता है कि नहीं यार देखो, एक आदमी, उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, वो यहां पे आ रहा है तो क्या बुरी बात है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर एक दिन आता है और ये देखते हैं कि वो आदमी कंटेनर पे चढ़ता है, और कंटेनर पे चढ़ता है, अल्लाह ने इंसान के हाथ में दो चीजें दी है, एक माइक, पीछे मीनार पाकिस्तान। और जब ये बातें हो रही थी तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई, पता चला खान साहब ने नीचे बनियान ही नहीं पहनी हुई। 13 साल हो गए इस वाकये को, लोगों के जहनों में आज तक फ्रेश है। अच्छा, इससे पहले ना हम लोग, बहुत मुश्किल होती थी लोगों से कम्युनिकेट करने में, उनको समझाने में कि नहीं यार ये ऐसे ही होता है, सारे पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं, सबकी एक ही जैसी प्रायोरिटी होती है, सबको सीवी देनी होती है, सीवी देके थोड़ी बहुत चापलूसी करके वो आ जाते हैं, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, मीडिया उनके हक में हो जाता है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन उस दिन के बाद से बड़ा आसान हो गया। अब आप किसी को कहो कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पता है? बोला हाँ पता है, उससे पहले फला 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 काम भी हुआ। बोला तो कैसे? बोला खान साहब ने बनियान नहीं पहनी हुई थी, पहनी होती तो मैं पता चल जाता। फिर खान साहब आए, उन्होंने एक और स्कीम बनाई, एक और वो आए इक्तिदार में, इक्तिदार से चले गए, लोगों को गुस्सा आ गया। उस गुस्से में हमने एक और चीज देखी। हमने आज तक शहबाज शरीफ साहब को खादिम आला देखा था, फिर हमने उनको वजीर आजम के तौर पे देखा। एक मेरा दोस्त है पीएमएलएन का, बड़ा कट्टर सपोर्टर है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों के पास सिर्फ फैमिली के लोग हैं, कभी कोई बाहर का आदमी नहीं आया? बोला नहीं यार, हम लोग फैमिली प्लानिंग लीडरशिप पे डिपेंडेंट है, हमारे यहां लीडरशिप फैमिली प्लानिंग से बनती है। मैंने कहा यार लेकिन नजरिया क्या होता है? कहता है नजरिया शहबाज साहब के पास जो है वो कोई कंपीट ही नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या? कहता है आपने सुना है अल्लामा इकबाल ने कहा था लपटना पलटना पलट कर झपटना। मैंने कहा हाँ, तो किसके बारे में कहा था? शहबाज साहब के बारे में। कहते नहीं, इनके बारे में तो कहा था लिपटना पलटना, पलट कर जूते से चमट जाना, जूते से चमट के जुराब में घुस जाना, चश्मा गले में डाल लेना और रगड़ रगड़ के पॉलिश करना, इतनी पॉलिश करना, इतनी पॉलिश करना। बोले इस नजरिए में कोई कंपीट नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, इसमें तो कोई कंपीट नहीं कर सकता। बोला हमारे शहबाज साहब को बहुत सारे लोगों के नाम जुबानी याद होते, पूरी अपने कारकुनान को वो जुबानी जानते हैं। मुझे लगता है आज अगर शहबाज साहब यहां पे होते ना, और आज हम इसी तरह वो सामने बैठे हुए होते, हम उनको बुलाते चीफ गेस्ट के तौर पे, और यही माइक लगे हुए होते। अच्छा HTC के माइक है, थोड़े से महंगे हैं, लिहाजा मैं इनको वो हरकत नहीं करूंगा जो शहबाज साहब करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज चेज वैल्यू का आगाज हुआ है। यहां पे खुदा की कसम अगर आपने चेज वैल्यू को कामयाब कर दिया, शहबाज साहब का स्टाइल है, जज्बात में आते हैं तो थोड़े से चल जाते हैं। पहली जगह है, वैसे आपस की बात है, आप लोगों की वीडियो देख रहा था जहां पे आपने मुलाजमीन की बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम बनाया हुआ है। बाहर की कंपनियों में अपने लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर करके बन जाते हैं ऊपर के। जबरदस्त, ये क्रेडिट देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का दौर है माशाल्लाह, आता जाता रहता है। अभी फिलहाल नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल। और मुझे लगता है अगर इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब यहां पे अगर चीफ गेस्ट में होते और उनको हम यहां तकरीर के लिए बुलाते
कोई बिलावल भुट्टो साहब के फैंस हैं यहां पे तो जरा तालियां बजा दो। नहीं, मुर्तजा वहाब को पहुंचा देना ये वीडियो। नहीं, मैं बता देता हूं। अच्छा, ये पता है आप लोग झूठ बोलते हो सारे, आप सारे लोग झूठ बोलते हो। व्हाई? बिकॉज बिलावल साहब की तकरीर पे जितना रिएक्शन आप लोगों का आता है उतना किसी और को नहीं आता। और मैं इसकी जीती जागती मिसाल हूं। मैंने साबित किया कि बिलावल साहब पाकिस्तान के क्या बल्कि दुनिया के सबसे पॉपुलर रीडर हैं, और मैं आप लोगों को उसका एक एग्जिबिट दे सकता हूं। मिसाल के तौर पे अगर चेज वैल्यू की तकरीर में मैं बिलावल साहब को बुलाऊं और वो आके कहें कि मेरे प्यारे प्यारे चेज वैल्यू के कारकुनों, आप लोगों ने यहां पे कोरंगी में चेज वैल्यू खोले हैं, जंगल में मंगल किए हैं, लेकिन आज तो मंगल नहीं है, आज तो सैटरडे है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और अगर थोड़ा सा उनको गुस्सा जाए, और उनको आ जाता है कभी कभी, जब आप लोग कनेक्ट नहीं करते ना वो गुस्से में कर जाते हैं, और उस वक्त आप लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हो। पूछो कैसे? जिस दिन उन्होंने कहा था ना, अंकल अल्ताफ आप अपने नामालूम अफराद को संभाले, सब लोग कह रहे थे दादा ये लड़का वो कर गया जो हम नहीं कर सके। टेंशन क्रिएट कर दी इसने मार्केट में। अच्छा, अब उनका जिक्र आ गया तो उनकी बात कर लेते हैं। आज अगर वो यहां पे हो और उनको यहां बुलाया जाए कि सर आप चेज वैल्यू के लिए 2 जुमले कह दे, उन्होंने सिर्फ एक जुमले में बात खत्म कर देनी थी। मुफ्ती साहब घबराना नहीं है आपसे, मुफ्ती साहब घबरा गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहना था, गफ्फार ब्रदर्स तुम्हारे इस गाल के लिए भी दूसरे गाल के लिए भी। बखुदा मैं कराची से बाहर जहां गया हूं मैंने ये बात कही है कि ये पप्पी सन 2014 में पहली बार ऑन एयर हुई थी। हम कराची वालों को इसकी तरी आज तक अपने गालों पे फील होती है। ना सिर्फ ये बल्कि इसमें से हलीम की खुशबू भी आती है। कभी फील करें आप लोग। लेकिन अब लीडरशिप बदल गई है, कराची का माहौल बदल गया है और कराची में नई लीडरशिप आ रही है। फारूक सत्तार साहब आ गए, एक लीडरशिप है। फारूक भाई के कोई फैंस हैं यहां पे? पीआईबी होता बेटा फिर बताता तुम लोगों को। उन्होंने सुनते अगर हम यहां बुलाते और कहते कि सर आप कुछ 2-4 कलमात कहते, उन्होंने कहना था हमें दीवार से लगाने का सिलसिला बंद किया जाए। और यहां पे एक शेर लाजमी होता है उनका। और शेर क्या होता है? कोई भी चीज होगी लेकिन वो उसको जोड़ देंगे अपनी हिकमत अमली से। मिसाल के तौर पे अगर हम अमीर होते तो खरीद लेते खोते, कभी तुम सवार होते कभी हम सवार होते। मुस्तफा कमाल साहब आए, अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बना के इतना आगे तक गए, वापस अपनी पार्टी जम कर दी एमकेएम में। अगर वो यहां पे हो वो क्या कहेंगे? ये जितने लोग यहां पे हैं, ये जितने लोग ये सर नजर आ रहे हैं मुझे यहां पे, सर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है चंगेज खान गुजरा है यहां से, सर पड़े हुए यहां पे। और आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा ये जितना इनको ये डेवलपमेंट का काम हुआ, जब मैं नाजिम था मैंने करवाया था ये काम। आज आप लोगों को कहां छोड़ दिया ये आदमी? आंसू नहीं आ रहा, प्याज ला। उनका एक अलग गेम चल रहा है। जफर भाई हैं चले? अरे जफर भाई कहां चले गए यार? जफर भाई वैसे माशाल्लाह कमाल आदमी है। जफर भाई ने अभी कोरंगी को बर्र आज़म का दर्जा दिया। मैं इस पे कोरंगी के एहलियान को मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखें, शहर बढ़ते रहते हैं, आबादियां बढ़ती रहती हैं, लेकिन उसके साथ थोड़े वसाइल भी आने होते हैं। और बड़ा अजीब लगता है एक शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता हो,
उस शहर में कचरे के डब्बे यूएस एड वालों के लगे हों, बड़ा अजीब लगता है। मैं चाहूंगा एक दफा इस बात पे तालियां बताओ, जज्बाती बात कही है मैंने। सर आप लोगों के लिए मुश्किल दौर है, निगरान हुकूमत के लिए तो बहुत मुश्किल दौर है। वजह आप लोगों के सामने चैलेंजेस हैं, आप लोगों के सामने बहुत मुश्किल चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने कराची, और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कराची की आवाम। आज तक पता ही नहीं चला कितने हैं। हालांकि जितनी तादाद में कराची वाले बढ़ रहे हैं और जितनी तादाद में कराची वाले उग रहे हैं, कोरोना से ज्यादा वबा फैल गई है कराची की। दुनिया में जहां कहीं चले जाएं, आपको 2-4 कराची वाले मिल जाते हैं, और 2-4 कराची वाले वहां पे आपको अपनी जुबान बात करते हैं। यार जब हम होते थे ना, हमारे टाइम में जो कराची था ना, ओ हो ना पूछे यार, कराची अभी भी वैसा है, तुम आओ तो सही। उस वक्त तुम्हारे दौर में भी मोबाइल इजाद नहीं होते थे, अखबार छिनते थे, हमारे यहां मोबाइल छिनते हैं, टेंशन किस बात की है। लेकिन लोग आते हैं। अच्छा, एनी फैंस ऑफ म्यूजिक हेयर? कोई म्यूजिक के शौकीन लोग हैं यहाँ पे? म्यूजिक के कोई दिलदादा लोग अगर हैं तो जरा एक तालियां बजाओ ताकि मुझे पता चले। सर इजी हो जाए, कोई टेंशन नहीं, आप हाथ बांध के खड़े, टाइट हो गए, अब इजी हो जाए। म्यूजिक का सीन थोड़ा सा आजकल पता है चेंज है। हम लोग जरा बचपन में बहुत आते रहे हैं कराची, बहुत ज्यादा कराची में ट्रैवल किया है। तो कराची में W11 को उमर शरीफ साहब ने एक शनाख्त दी, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि W11 कोई चीज होती है। बाद में पता चला कि नहीं, एक बस है जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है, यहां भी चल रही है, लेकिन यहां वाली कुछ अलग थी। इसके अंदर म्यूजिक के दिलदादा लोग बैठते थे। पूछो कैसे? कुमार शानू इतना महाराष्ट्र मुंबई में नहीं सुना गया जितना यहां सुना गया, और ड्राइवरों को शौक होता था कुमार शानू के वो वाले गाने लगाने का जिसके अंदर मूड हो। पूछो कैसे? कुमार शानू हर गाना शुरू करने से पहले एक हे करते हैं, उस हे में कुमार शानू हीरो की नीयत बताते हैं। मिसाल के तौर पे, हे ला 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 ला, समझ जाओ कि या हीरो की तबीयत खराब है या नीयत खराब है। दोनों में से कोई एक काम होने लगा। कुमार शानू एक और मूड में होते थे, हो इसका मतलब है ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है। और इसी एरिया के बाहर ये जिस तरह सतून बने हुए, उस किस्म की लोकेशन में सीन शूट हो रहा है। अमूमन ऐसी लोकेशन पे शक्ति कपूर टाइप के लोगों के फिल्म सीन शूट होते थे। वो आप लोगों ने माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी सेटिंग लगा दी। मैं चाहूंगा यार जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जरा उनके लिए भी एक तालियां बजाओ, बेहतरीन सेटअप बनाया। मतलब ग्रीन रूम जाके अंदाजा हो यार, दिस इज एन एम्प्टी लॉट। उनके मुकाबले में हमारे यहाँ एक और सिंगर क्रिएट हुए, और वो सिंगर थे वारिस बेग साहब। वारिस बेग साहब, उनका एक गाना था कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वो गाना वो आज तक चला रहे हैं, और वो गाना भी W11 में चल रहा था। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसका किया सलाम तुम्हारे धोखे में। बंदा पूछे सर मोहब्बत की हद तक तो ठीक है, लेकिन पिया क्या था? इमेजिन करो ना। और आगे चलते हैं। रात को देखा ख्वाब मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे बोले। लोकल या वलायती से काम नहीं होता, ये ठर्रे का काम है, मैं आपको बता दूं। फीलिंग। हमारे एक और बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, उन्होंने उस जमाने में कारनामा किया, उन्होंने पंजाबी म्यूजिक को एक नई जान दे दी। वो नई जान इंग्लैंड गई, उससे कोई आज तक 50 बैंड पैदा हो चुके हैं। वो साहब बाद में सियासत में आ गए, उनका नाम है अबरारुल हक। अबरारुल हक ने उस वक्त बिलोदे घर किया, बिलोदे घर करने के बाद वो आज मतलब जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई अजीब इनकलाबी गाने शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे उस जमाने में वो क्या करते थे, मैं किसानू विद्याणी कौन कौन मैन देवी नान नजना नजना दे नान खेड़ दे, झूठ जेड़ा माल चाल जावे ओदी टट बाबा मान न जमान, तू है कूड़ी वेरी गोड नाले ओसने चमाल माल, ताई तेरी गाल करनी है नैडी नाल, ऐस तेरी गाल करनी। ओए आजकल क्या कर रहे हैं वो? इनकलाब लग गए ना। इनकलाब के बाद क्या कर रहे हैं?
जितना भी इमरान खान जितना दूजिया जमाता वे बाणा बिटना जित जावे साड़ी तहरीक आज मेरा जी कर दे इमरान खान जाल जुआच मेरा औकात ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ਾਟ एक और साहब है हमारे शहजाद रॉय साहब शहजाद रॉय साहब 1997 में जैसे दिखते थे आज तक वैसे दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो गाना बना रहे थे उन गानों में बड़ी मासूमियत थी ना तेरा कंगना जब खनके तेरी पायल जब बोले तेरे सुंदर माथे सारा गेम एक्सप्रेशन का था फिर उसके बाद उन्होंने खुद को डिस्कवर किया कि नहीं यार इनकलाब भी ला सकता हूं मैं इनकलाब बाकी लोग जो हैं वो सियासी जलसों में जा रहे हैं ये उल्लू सीधा कर रहे हैं अपना कैसे अपने उल्लू कितने गोरे अब तक हुए न सीधे अपने उल्लू गोरे गोरे ये यहीं पे है गोरे गोरे और साथ में वो वासु भाई को पकड़ के लाए थे अल्लाह गरीब रहमत करे फौत हो गए शहजाद रॉय आया मेरे आके कराची में मेरे से गाना बनवाया गाने के अंदर मुझसे काम करवाया काम करा के मुझे बाकी घरों में तनख्वाह पे लगवाया तनख्वाह गला के मुझे कुछ भी नहीं दिलाया और उसके बाद फिर से मशहूर कराया अपने आप को शहजाद रॉय ने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया एक और सिंगर है हमारे आतिफ असलम एनी फैंस ऑफ आतिफ असलम है आतिफ का सबसे बड़ा कमाल ये है आतिफ की नाक बंद कर दो गूंगा हो जाएगा आई टेल यू हाउ दुनिया का कोई गाना दे दें आतिफ को आतिफ उसको ऐसे स्केल पे गाता है जो कोई मैच ही नहीं कर सकता मिसाल के तौर पे उसका एक गाना है अब तो आदत से मुझको ऐसे आप उसे कह दो भाई कोई गाना एनी चैलेंज कोई गाना मिसाल के तौर पे लब पे आती है दुआ आतिफ असलम से को आप गाओ लब आते दुआ बन के तमन्ना मेरे जिंदगी समा की जरूरत हो खुदाया मेरे हो गया Well, ladies and gentlemen, this is Shafat Ali signing off from Chase Value and a heartiest congratulations to all the Chase team जिन्होंने इस आज के इवेंट को कामयाब बनाया. I thank you all. That was wonderful. I think Shafat always makes us laugh, never disappoints. Thank you very much for your wonderful sense of humor. And with that, ladies and gentlemen, I, Faizan Haqqi, would like to thank all of you for being here tonight. I thank Chase Value for allowing me to take part in tonight's program. And I would also like to thank Ad Pulse and the team from Khurram Tafrani's gang for putting together tonight's event. Wonderful job. I came here 2 days ago, there was nothing, and now we've got a jungle mein mangal. So with that, ladies and gentlemen, thank you very much for being here. Let's all enjoy a scrumptious bite together. It's time for dinner. Thank you very much. I'm Faizan Haqqi signing off. See you next time.